इस वीडियो में दो मेन क्वेश्चन हैं। आप अपना ओपिनियन बताओ। एक मेन क्वेश्चन है कि विल एनी आईपीएस ऑफिसर सेंड हिज वाइफ बाय कैब। कोई भी आईपीएस ऑफिसर आप जानते हो जिसने अपनी वाइफ को रेस्टोरेंट से घर वापस कैब में भेजा हो। एक क्वेश्चन, आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट आपके मेन एसएसबी का जो टेस्ट है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? क्या ये रिलायबल नहीं है? ये दो क्वेश्चन है मेरे माइंड में। इनका जवाब मैंने देने की कोशिश करी है वीडियो में, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। So I would like you to write your opinion in the comment section. Bye. Hello. Chalo, let us start with the analysis, review of your story. Pratyush Mohanty has sent me a story in his comment section, and if you also want your story, your words or sentences or authorities to be reviewed, or for that matter any question on GTO or your interview question or in any other field, even in your day-to-day life, if you got any problem for which you want a satisfactory answer, it will be my privilege. I'll feel happy to help you, whatever I can guide you and help you, even in your day-to-day life or your school or your college, whatever it is. But you have to write your question in the comment box. And if there is a picture associated with it, like in TAT story, then you send the picture to me on WhatsApp. Then only I'll be able to review your story. Anyway, तो स्टोरी जो प्रत्युष मोहंती ने भेजी है, रमेश वॉज ए, एंड आई शो यू द पिक्चर हियर, हैव ए लुक एट द पिक्चर एंड देन आई रीड आउट द स्टोरी. Ramesh was a hard-working farmer. When he learnt about the upcoming government scholarship exam for the primary school students to avail better education, he and his wife decided to prepare their son for the examination. स्टिमुलस पूरी तरीके से कवर हो गया है. 3 करेक्टर दिखाए हैं, तीनों करेक्टर को इंक्लूड कर लिया है. और जो स्टिमुलस में बैकग्राउंड सीन है, जो भी है घर का सीन है, वो कवर कर लिया है. तो स्टिमुलस हैज़ बीन कवर्ड. इससे साइक को ये क्लैरिटी आ जाती है कि आप कोई कोज्ड स्टोरी, प्री कंसीव्ड स्टोरी, प्री प्रिपेयर्ड स्टोरी ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हो. इस स्टिमुलस से आप स्टोरी स्टार्ट कर रहे हो. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्टिमुलस को कवर कर लेना. आगे इन्होंने लिखा है, दे इंक्वायर्ड अबाउट द स्कॉलरशिप टेस्ट एंड इट्स बेनिफिट्स. दे नेक्स्ट गेव द रिक्वायर्ड गाइडेंस एंड नॉलेज फॉर द स्कूल फ्रॉम द स्कूल टीचर्स एंड took regular updates of the progress. They ensured their son completed his homework that was given to him. Finally, Ramesh and his wife were proud of their son's success in the test. They blessed him for his future. अच्छी स्टोरी है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. और आपने पेरेंट्स का सपोर्टिव रोल दिखाया है. हीरो यहाँ पर आपका जो फादर है वो आप स्टोरी का हीरो है, और उसने जो एक्शंस लिए हैं वो ठीक एक्शंस है. कंप्लीट स्टोरी है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है. कोई भी थीम आप ले सकते हो. यहाँ पर आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए बच्चे को तैयार कराने के लिए तैयारी करी. कुछ लोग लेते हैं कि ये बच्चा छोटेपन से बहुत अच्छा था, होशियार था, और उसके बाद में ये मोटिवेट हुआ एनडीए के लिए, इसने प्रिपरेशन करी और एसएसबी क्लियर करके एनडीए पहुंच गया. तो अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग हिसाब से स्टोरी बनती है. आपकी स्टोरी इज परफेक्टली ऑल राइट. आई हैव नो प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी. गुड. अब नेक्स्ट जो स्टोरी है, ये
ब्रजेश कुमार ने भेजी है। सर प्लीज़ रिव्यू माय स्टोरी। पिक्चर आप देख लो, उसके बाद में आई विल रीड आउट द स्टोरी। Anish Rathore, 27, was a IPS officer posted in Delhi headquarters. It was his marriage anniversary, for which he, along with his wife, went to a restaurant for having lunch and spending lovable time with her. But suddenly he receives a call from his department and gets informed about a smuggling deal which is going to take place in the locality. His wife tried to stop him, but he, being dedicated towards his duty, convinced his wife and booked cab for her and left for the spot. He communicated with the team and discussed the plan and created ambush in the dealing area and ensured everyone was in a proper place. At the time of deal, they gave a surprise attack and caught all the people with the drugs and investigated on them. After the investigation and documentation, he reached his home and convincingly had dinner with his wife. तो दिस स्टोरी इज ऑल्सो ओके। एक्शन कंप्लीट करा है, जो दिखाया है कि वाइफ उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जो मेल करेक्टर है वो कहीं जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, फॉर्मली ड्रेस्ड है। तो आपने बिल्कुल सही लिया कि रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। घर में फॉर्मली ड्रेस होके डिनर के थोड़े चांसेस थोड़े से कम ही होते हैं, हालांकि कर भी सकते हैं, नॉट दैट कि नहीं कभी भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है। और रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए, आईपीएस ऑफिसर है तो आप ठीक है, पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस कहना चाहते हो कह लो, अदरवाइज सिंपली यू कुड हैव सेड दैट ही इज अ पुलिस ऑफिसर। तो उसके बाद में इनको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने उस पर एक्शन लिया, सक्सेसफुल हुए, जो मिशन में अपने गोल अचीव करा, और उसके बाद में आए और अपनी वाइफ के साथ डिनर करा इन्होंने, जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे वो करा। तो दोनों टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, कोई टास्क इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड नहीं रहा। ये नहीं कि चलो विल गो ऑन नेक्स्ट संडे, तो आज अगर टाइम है तो आप आज डिनर ले लो। और वाइफ के वापस जाने के लिए इन्होंने अरेंजमेंट करा कैब का। तो यहाँ बस थोड़ा सा, हालांकि नथिंग रॉन्ग इन इट, थोड़ा सा ये पॉइंट आ रहा है कि आईपीएस ऑफिसर है तो क्या कैब करके आया था, कैसे आया था। तो आईपीएस ऑफिसर है तो फिर अपनी गाड़ी से ही आएगा, और नॉर्मली ड्राइवर भी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मत हो जाओ। अब यहाँ आपने चूँकि आईपीएस मेंशन कर दिया तो ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि वाई कैब। तो अगर आप खाली लिखते कि ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर तो कोई ज़रूरी नहीं था, पुलिस ऑफिसर है तो वो अपने कैब से भी जा सकता है, यहाँ भी जा भी सकता है कैब से भी, लेकिन स्टिल इट इज़ बेटर कि आप बहुत स्पेसिफाई मत कर दो, तो फिर क्वेश्चंस आपके अवॉइड हो सकते हैं। अदरवाइज ये स्टोरी इज एक्सेप्टेबल। चलिए अब ओके, अब एक क्वेश्चन अभिषेक, myself Abhishek, a subscriber of your YouTube channel. Sir, I have a query that is the stage 1 testing of SSB really justified, logical and trustworthy? Very big question and very relevant question he has asked. Sorry for questioning the selection system, but sir, recently I have been to AFSB Varanasi. I did well in OIR as this was the third time I was given OIR booklet 34 and 35. I wrote a good story. Narration was good, but in GD the common story was different than what I wrote. Still, I contributed 3 points to the common story, and hence the group nominated me to narrate the common story, and I did that well. This was my best performance till date, but I got screened out, and previously, despite not performing as good as this time, I was screened in, and it was more surprising to see that 2 previously recommended candidates were also screened out. We talked to each other and we all had the same thing in mind. We are failing to find out any mistake that led to our rejection, and when we compare ourselves with the selected candidates of our group,
we find that, बहुत लंबा क्वेश्चन इन्होंने भेजा है. We find that people with illogical stories, like we cut down a forest and made a park there. These people are war veterans and discussing their war experience in a park. So this type of people got screened in on this story. I request you to kindly make a video on it, sir. It's not only the problem of mine, a lot of candidates are having this kind of experience. Thank you very much, sir, for always giving us conceptual clarity through your videos. अभी अभिषेक जी, आपके क्वेश्चन से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आपको बहुत शौक़ लगा है और मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस तरीके का शौक़ लगता है जो मेरी नॉलेज में है. कुछ मेरे कैंडिडेट्स और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ. रिकमेंडेबल कैंडिडेट, आई कैन वाउच फॉर दोज कैंडिडेट्स, और वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं. जो अगर स्क्रीन इन हो गए होते तो वो 100% रिकमेंड होते. इतनी अच्छी प्रिपरेशन है उनकी. तो ये तो बात आपकी सही है. रिकमेंडेड कैंडिडेट गेटिंग स्क्रीन आउट, बिल्कुल सही बात है. मेरे एक रिकमेंडेड कैंडिडेट जो अभी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए दैट कैंडिडेट इज गोइंग, दैट कैंडिडेट आफ्टर रिकमेंडेशन इन द सेकेंड अटेम्प्ट वॉज स्क्रीन आउट. यू आर राइट, आई फुली एग्री विद यू. तुम्हारा दुख दर्द मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ. अब आ जाए काम की बात पे. देखो, जब हमें पता है कि ये जो स्क्रीनिंग है ये बड़ी धोखेबाज चीज़ है, इट्स नॉट रिलायबल, इट्स नॉट रिलायबल एंड इट्स नॉट वैलिड. वाई? बिकॉज रिकमेंडेड कैंडिडेट भी स्क्रीन आउट हो रहा है. सॉरी. अब एक बात आप समझो, आपने 10th का 12th का एग्ज़ाम दिया, ठीक है. मैं सिस्टम को डिफेंड नहीं कर रहा. आई एग्री विद यू कि सिस्टम रिलायबल नहीं है. एक ही रिलायबिलिटी के मतलब है कि एक ही कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है वो बार बार सेम रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक है. अब यहाँ पर दो बातें उठती हैं. 300 कैंडिडेट आपके सिलेक्शन बोर्ड में आए, 300 में से 60 स्क्रीन इन हुए. और जब ये चीज़ शुरू करी गई थी तो इसी ओवर क्राउडिंग की वजह से ही शुरू करी गई थी. एंड आई थिंक पीपल आर टॉकिंग कि अभी कुछ नया और सिस्टम शुरू करने वाले हैं. आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि क्या है क्या नहीं है. करने वाले हैं तो अच्छी बात है. जिस समय ये अर्ली 2000 में शुरू हुआ था, आई थिंक अराउंड 2002 के आसपास शुरू हुआ था ये, उससे पहले स्क्रीनिंग नहीं होता था. तो जब ये शुरू हुआ था तो प्रॉब्लम क्या थी कि ओवरलोडिंग हो रही थी. सिलेक्शन बोर्ड में इतने सारे कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन करना, पूरे साल भी हम सिलेक्शन करें तो भी हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा, नहीं हम सारे कैंडिडेट्स को कर पाएंगे. तो उसका एक सॉल्यूशन था कि आप जो रिटर्न को आप कर दीजिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दीजिए. उतने कैंडिडेट ही नहीं पास आए तो उसको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करा गया, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे कैंडिडेट क्लियर कर रहे हैं रिटर्न. तो जो रिटर्न की कट ऑफ बना दी, उतनी कट ऑफ पे आपने देख लिया कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अगेंस्ट हम इतने कैंडिडेट को कॉल करेंगे. और कॉल करके उनको कम से कम आने का एक मौका दे रहे हैं हम कि आप SSB में आइए और कम से कम ट्राई करिए. तो अब बात ये आ जाती है कि उनमें से 50, 60, 65 कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं और छोटा बैच होता है तो कम भी होते हैं. तो जो स्क्रीन इन हुए, देखो एक बात अभिषेक, एक बात आप समझो कि 60 कैंडिडेट स्क्रीन हुए, उसमें से रिकमेंड कितने हो रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6. 60 में 6 भी रिकमेंड हो गए तो कितने हुए रिकमेंड? 10%. तो 10 गुना
हमने ज़्यादा कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन करे हैं, 10 टाइम्स मोर। एक रिकमेंडेबल कैंडिडेट के पीछे 10 कैंडिडेट हमने लिए हैं। तो आप इस बात को भी समझो। दुख तो होता है, आप स्क्रीन आउट हो गए, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आपकी जो परफॉर्मेंस आज और इस समय होगी उस पर जज करा जाएगा। आप रिकमेंडेड कैंडिडेट हो तो आप स्क्रीन इन हुए ना, आपने मेहनत करी, परफॉर्मेंस दी उस दिन, उस समय पर, उस सिचुएशन में, उस ग्रुप में, तो आप स्क्रीन इन भी हुए और आप रिकमेंडेड भी हुए। यही बात मैं कह भी रहा हूँ। तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल, मैंने वो बात आती रह गई, मैंने कहा था कि 10th और 12th का एग्ज़ाम आपने दिया, आपके 80%, 90%, 95% मार्क्स आए। अब आज मैं वही क्वेश्चन पेपर आपको अभी दे देता हूँ दोबारा। कैन यू अश्योर मी कि यू विल गेट द सेम 95% मार्क्स? आज सेम पेपर, वहाँ तो स्टोरी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और क्राउड भी डिफरेंट हो जाता है जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। यहाँ तो सेम ही क्वेश्चन पेपर, आप अपना पुराना निकाल के देख लेना, वो उसको आज बैठ जाओ आप देने के लिए और किसी से चेक करा लो, क्या 95 आएंगे? आपके शायद 60% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी या कुछ और प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आप जो आउटपुट दे रहे हो वो असेस करा जा रहा है, वो जज करा जा रहा है, उसके बेसिस पर आपको स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट करा जा रहा है। अब यहाँ टाइम बहुत कम होता है, उतने थोड़े से समय में आप अगर अपने इम्प्रेशन छोड़ पाओगे, यही बात मैं यहाँ क्लास में भी बच्चों को, कैंडिडेट्स को यही बात समझाता हूँ कि ये 1 मिनट 2 मिनट का खेल है सारा। आपने इम्प्रेस कर लिया तो आप अंदर, और नहीं इम्प्रेस कर पाए तो बाहर, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। अब OIR भी यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो OIR आपका आया, अगर आपका OIR 2 आ रहा है तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। OIR 3 या 4 आ रहा है तो चांसेस आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, मैटर करती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें पता है, हम सिस्टम में फॉल्ट ढूंढें तो उससे तो हमारा सॉल्यूशन होने वाला नहीं है कि हम कहें कि जी सिस्टम इज़ फॉल्टी और ये तो गलत है, अब आप इसको ठीक कर दीजिए। तो वो तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपके कहने से ऐसे कोई सिस्टम चेंज हो जाएगा, और आपका इंटेंशन भी ऐसा नहीं है। लेकिन यू हैव पुट इट वेरी रिस्पेक्टफुली कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द सिस्टम, आई फुली एग्री विद यू। लेकिन बात यह है कि जब हमें सिस्टम पता है तो फिर हम तैयार होकर क्यों नहीं जा रहे? और आपने कहा है कि ओके आई हैव गिवन माय बेस्ट, दैट इज योर परसेप्शन दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट, बट डिड द असेसर्स फील लाइक दैट? आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम यहाँ नहीं कर रहे हो, आप अपने को प्रूव कर रहे हो असेसर्स के सामने, आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हो कि दिस इज़ माय बेस्ट फॉर्म। तो वहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, किसने कैसे इम्प्रेस कर लिया? और जो मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं, एक आपकी स्टोरी का कंटेंट होता है, दूसरा आपका नरेशन होता है, और तीसरा आपका डिस्कशन होता है। तो अब कभी स्टोरी के कंटेंट ज़्यादा वे कर जाते हैं, कभी नरेशन वे कर जाता है, और कभी ज़्यादा जोर हो जाता है डिस्कशन के ऊपर। तो 3 असेसर हैं। देखो, आप ऐसा भी नहीं है कि कोई एक असेसर मनमानी कर रहा है, 3 असेसर हैं, 3 असेसर असेस कर रहे हैं और उसके बाद में आपको एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, OIR को भी कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो इसके बाद में थोड़ा सा डाउट का गुंजाइश थोड़ी कम रह जाती है, बट स्टिल आई विल एग्री कि हाँ ऐसा होता है, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। अब जब होता है तो फिर उपाय करो, जब बीमारी पता पड़ गई तो इलाज करो। दैट्स ओनली व्हाट वी कैन डू नाउ, एंड आई हैव फुल एम्पैथी विद व्हाट यू आर सेइंग। सो आई होप आई हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ एंड दिस शुड बेनिफिट एवरीवन। देखो जो आपका स्क्रीनिंग PPNDT है, मतलब मुझे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है कि इट इज़ नॉट ए रिलायबल टेस्ट, एंड व्हेन यू नो दैट इट इज़ नॉट रिलायबल,
प्रिपेयर फॉर इट, मोर पुट इन मोर एफर्ट और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार देखो आप कि आप स्क्रीन इन हो जाओ. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग.